Our next speaker is Dr. Hemant Thakkar. He started his medical career by completing homeopathic qualification in 1985. He practiced allopathy for 10 years. Since 1994, he started practicing Sujok acupuncture and followed by traditional acupuncture. He has visited Moscow twice, first-hand information of Sujok, and became the first recognized lecturer in India. In New Zealand, he taught and also administered the oldest school of New Zealand School of Acupuncture and TCM. Dr. Hemant has received a training in various countries like Sri Lanka, Malaysia, Moscow, and New Zealand, etc. He has vast experience of doing treatment camps, awareness programs for acupuncture, teaching and treating at both national and international levels. In Iran, he has treated and taught acupuncture on frequent visits. He has been a part of regular participants in all the seminars of health research and foundation with Dr. S.K. Gupta ji since 1999, when he started conducting conference of alternative medicine at the same venue. He worked as a team with Dr. Rumi Behram ji for the recognition of acupuncture in Maharashtra and also formed Association of Acupuncture Science Practitioners to promote acupuncture in a systematic and scientific manner. Dr. Hemant has played a role as a member in both the committees for the Acupuncture Therapy Bill 2015 Maharashtra. He further wishes to continue work for spread and upgradation of acupuncture practitioners in future. His name is nominated for the Acupuncture Council of Maharashtra, which is soon to be formed. So let's welcome Dr. Hemant Thakkar. Hello everybody. How many of you do acupuncture? Sujok? Good. I was little kind of shaky when I came here because today's subject, Ajay, now today's subject is very important provided you understand it. It should be meaningful to you. Okay? So people who do not do acupuncture, I will carry on with what the previous speaker was talking about. Basically, we are talking about 5 elements. Everybody knows that? Wood, fire, earth, metal, and water. What he was talking about is from Feng Shui or from date of birth, we can know the element of the person. That will describe your own element. Okay? The colors he has already told you. I don't have to waste time on that. Now, what is more important is you need to remember 2 things. The first cycle, the mother and son, or the creative cycle. In that, what you have to do is use, if you want to enhance your energies, use the mother color. For example, as he said, he is a wood element person. That means water becomes the mother element for him. हिंदी में बोलो. All right, good. हम 5 एलिमेंट की बात कर रहे हैं. Wood, fire, earth, metal, water. For example, wood is green. Fire is red. What I'm talking about is acupuncture point of view. Don't mix. आपका तरीका सोचने का अलग सिस्टम से अलग हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. This works. I have been doing this for last 20 years. It works. Trust me. So wood, green color. Fire, red color. Earth, yellow color. Metal, white color. Water, black color. Simple logic is कि अगर एक आदमी वुड एलिमेंट है तो उसका सेल्फ कलर ग्रीन है. फिर आप घर में एक पेपर लेकर उस पर बागवा बनाओ या आपका विजिटिंग कार्ड हो, उसमें आप ग्रीन कलर इस्तेमाल कर सकते हो सेल्फ एनहांसमेंट के लिए. एट द सेम टाइम आपका मदर क्या हो गया? ब्लैक, वाटर. आप वो भी यूज कर सकते हो. कंट्रोलिंग आपके लिए क्या हो गया? येलो और वाइट. तो अगर एक बच्चा हाइपर है तो उसको आपको कंट्रोल करना है तो आप वो भी कर सकते हो. सो ये अलग अलग तरीके हैं
You can use them. It is really fantastic. Coming to today's subject. So today's topic is balance method. इसका सबसे ज़्यादा एडवांटेज ये है कि अगर आप बिगिनर भी हो, आपके पास बेसिक इंफॉर्मेशन भी है, तो भी आप ये सिस्टम यूज़ कर सकते हैं बेटर रिजल्ट्स के लिए. जिसको पल्स डायग्नोसिस, टंग डायग्नोसिस आता है, दे कैन डेफिनेटली यूज दिस फॉर बेटर रिजल्ट्स. बट उसके बिना भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो. सो एडवांटेज इज, एज आई टोल्ड यू, टंग डायग्नोसिस, पल्स डायग्नोसिस नहीं आता, फिर भी आप यूज कर सकते हो. छोटी जगह चाहिए, आपको अनड्रेसिंग वगैरह करना नहीं है, पेशेंट की प्राइवेसी मेंटेन होती है, क्योंकि आप डिस्टल पॉइंट या तो 5 शू पॉइंट्स आर बिलो द एल्बो, बिलो द नी. सो इट इज वेरी प्रैक्टिकल एंड नॉन डेंजरस. आपको कोई टेंशन ही नहीं. यहां आप नीडल मारो, लंग में जाएगा, पेशेंट की लाइफ खतरे में, आपकी प्रैक्टिस खतरे में. आप यहां खाली हाथ बिलो द नी, बिलो द एल्बो मारो नीडल, कोई टेंशन नहीं. दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो यू कैन सी द एडवांटेज. ऑलराइट, सबसे दूसरा फायदा यहां यह है कि द बेसिक रूल इज ट्रीट द ऑपोजिट साइड. सो जहां पेन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, कुछ भी है, पेशेंट इधर मारोगे, दैट फियर इज आउट बिकॉज यू आर यूजिंग द अदर साइड. द एडवांटेज इज दिस इज इम्बैलेंस साइड. वो थके हुए को आप चाबुक मार रहे हो, उससे अच्छा जो हेल्दी है उसको भगाओ ना. सो यू आर यूजिंग द ऑपोजिट साइड, दैट इज द एडवांटेज. नेक्स्ट नीडल 45 to 90 मिनट्स मैक्सिमम, और हाथ से स्टिमुलेट करना है. करंट की भी जरूरत नहीं, मशीन की भी जरूरत नहीं. सो यू कैन ट्रीट एनीबडी एनीवेयर. फॉर सुजोग पीपल, ये सिर्फ चाइनीज मेथड है, ये नहीं समझना. इसका इस्तेमाल आप सुजोग मेरिडियन पे उसी पॉइंट पे कर सकते हो. और मैं ये सिर्फ मैग्नेट लगा के भी करता हूं. सो नीडल भी जरूरी नहीं है. ऑलराइट, नेक्स्ट. अभी तेंदुलकर की बात की ना साहब ने, मैं जब ये लिख रहा था तो तेंदुलकर पिक्चर चल रहा था, तो उसका एग्जाम्पल मैंने लिया है. ही वॉज सफरिंग विथ टेनिस एल्बो ऑन द राइट साइड. सो वी हैव टेकन दैट एग्जाम्पल. नेक्स्ट प्लीज. सो ये सब हमारा किया हुआ नहीं है, नैंजिंग बुक में है. जो फेंगशुई जानते हैं, जो ट्राइग्राम्स जानते हैं, जो बागुआ जानते हैं, वो सारा कोरिलेशन है, वो डिटेल कोर्स में बताया जाता है. आज मैं सिर्फ आपको ग्लिम्पसेस और एग्जाम्पल बताऊंगा. सो आप प्रैक्टिकली घर जाकर इसका इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं. यू डेफिनेटली हैव अ टेक होम मैसेज आफ्टर दिस टॉक. नाउ वी आर कमिंग टू 5 basic methods. But before that, remember, the first system is, as I told you before, कि राइट साइड में उसको टेनिस एल्बो है. फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन है, तो राइट साइड का मेरिडियन अफेक्टेड है, तो यू कैन गो टू द लेफ्ट साइड. सिंपल, गो टू द लेफ्ट साइड स्मॉल इंटेस्टाइन मेरिडियन एंड यूज द सेम पॉइंट, एंड द पेशेंट विल डेफिनेटली गेट बेनिफिट. ऑलराइट, अभी हम बाकी की 5 सिस्टम जो इंपॉर्टेंट है उसके ऊपर आ रहे हैं. सो सबसे पहले आपको यह समझना है, सुजोग में इसको लॉन्ग मेरिडियन बोल के डिस्क्राइब किया है. बेसिकली इट इज द रिलेशनशिप ऑफ ताई यिन, दैट इज लंग एंड स्प्लीन मेरिडियन. दैट्स वन ग्रुप. हम आज तक सुजोग में नॉर्मल में एक एलिमेंट के कपल के बारे में जानते थे, लंग एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक एंड स्प्लीन, जो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं. यहां ताई यिन बोले तो लंग एंड स्प्लीन. नेक्स्ट प्लीज. जुई यिन, दैट इज पेरिकार्डियम एंड लीवर. नेक्स्ट. शाओ यिन, दैट इज हार्ट एंड किडनी. नेक्स्ट. नाउ वी आर कमिंग टू यांग मेरिडियंस. यांग मिंग, दैट इज एलाई एंड स्टमक मेरिडियन. नेक्स्ट. शाओ यांग, दैट इज TW and gallbladder. Next please. Tai Yang, that is SI and UB. One of the best tip what I can give you today is, if you know nothing or do not understand about the patient, just use Tai Yang. एक जमाना था जहां वो बात करते थे 6 divisions की. That means penetration of the disease
फ्रॉम आउटसाइड टू विद इन. पहले जो पल्स देख के बोलते थे कि ये पेशेंट मरने वाला है, हाउ वर दे डिसाइडिंग? फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू. आप एसआई मेरिडियन और यूबी मेरिडियन को इमेजिन करें एज इफ एक चामाचिड़िया, व्हाट डू यू से अंग्रेजी में चामाचिड़िया, बैटमैन. तो जस्ट इमेजिन कि एक बैटमैन खड़ा हो रहा है. यूबी एंड एसआई मेरिडियन, that means this is the biggest meridian. That means this is the first step of the disease entering the body. So that is from Tai Yang it enters and Jui Yin is the last, pericardium and liver. तो पल्स देख करके उनको फील होता था ये पेरिकार्डियम लीवर में है, अभी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, तो बोलते थे डेथ पॉसिबल. ऑलराइट, दिस वाज द थियरी ऑफ 6 divisions. So this is how this was important. Alright. Now next, so now you have the complete picture of the meridian channel coupling. Next slide please. Now this is what is organ clock. These are the two basic theories. हम सिर्फ 2 थियरी की बात करेंगे जो अभी मैंने बताया, ताई इन से ताई यांग तक और ऑर्गन क्लॉक. ये पोजीशन आपको मालूम है तो आप बैलेंस मेथड से ट्रीटमेंट कर सकते हो. ऑलराइट, फर्स्ट मेथड. Next. Now see, system 1. Sharing the name. मतलब के लंग और स्प्लीन को हमने ताई इन बताया, यानी कि लंग में अगर प्रॉब्लम है तो आप स्प्लीन को ट्रीट करो एंड यू विल गेट द रिजल्ट बिकॉज इट इज शेयरिंग द नेम ताई इन. सिस्टम 2. हियर यू आर टॉकिंग अबाउट same meridian name, branching method. Next, here you are talking about relationship with Zhang Fu जो हमको मालूम है, lung, large intestine, stomach, spleen, UB, kidney, etc. Fourth, organ clock opposite. अब सबसे पहले organ clock के हिसाब से जूने जमाने में हॉररी पॉइंट का इस्तेमाल उसी समय किया जाता था. फॉर एग्जाम्पल, अ पेशेंट विथ अस्थमा 3 to 5 AM को प्रॉब्लम है तो प्रैक्टिशनर विजिट को जाता था और लंग मेरिडियन का हॉररी पॉइंट लंग 8 उसी समय इस्तेमाल करता था. प्रोफेसर पार्क स्टार्टेड सेइंग दैट you can use that any time. Basically, when you talk about horary point or heart heat tonification, that means you are using the heat point of heart meridian. That's the horary point. All right. So likewise, here you know that 3 to 5 AM is not the practical time for us. But at the same time, we started doing that. 3 से 5 में शाम को पेशेंट को ट्रीट करो अस्थमा वाले को. आप 3 से 5 AM में नहीं कर सकते, 3 से 5 PM में करो. ऑपोजिट को बढ़ाओ एंड यू कैन हैंडल दैट. सेम वे यू आर टॉकिंग अबाउट कि 3 से 5 वाला जो मेरिडियन है उसका ऑपोजिट यूबी है, लंग और यूबी. दैट रिलेशनशिप वी आर यूजिंग. नेक्स्ट, नेबर ऑन द ऑर्गन क्लॉक, दैट इज यिन टू यिन, यांग टू यांग. लीवर एंड लंग आर द नेबर. आप ऑर्गन क्लॉक देखोगे आपको समझ में आ जाएगा. दैट इज न्यू रिलेशनशिप. Now we will take one example whereby you will understand. Okay? So the common example is right-sided tennis elbow pain. What Tendulkar had. All right? अभी इसका सबसे पहला तरीका left side small intestine meridian. So far so good. समझ में आ रहा है कि मैं घर जाऊं? Interesting है? Thank you. Next. So next you are using SI is ताई यांग. सो ताई यांग में एसआई का कपल है यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन. सो ट्रीटिंग राइट टेनिस एल्बो विथ यूरिनरी ब्लैडर मेरिडियन. थर्ड, नाउ ताई यिन एंड ताई यांग ऑल्सो मेक अ कपल, फैमिली ऑफ 4. सो एसआई मेरिडियन इज ताई यांग बट हैंड मेरिडियन. हियर यू हैव टू चूज ताई यिन but foot meridian because we are talking opposite. So tai yin is lung and spleen. So lung is the hand meridian. SI is also hand meridian. So we have to choose leg meridian. That is spleen in this case. So you are treating spleen for small intestine meridian.
टेनिस एल्बो के लिए आप स्प्लीन 9 इस्तेमाल कर सकते हो। नेक्स्ट, नाउ yin yang रिलेशनशिप, स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए, अरे कैमरा छोड़ो, वेबसाइट पे डाल रहा हूं मैं, पहले भी सारा रेफरेंस मटेरियल हमारी वेबसाइट पे है, आप पढ़ो। हमारी एक ही इच्छा है, सब लोग आगे आओ। वी विश दैट ऑल शुड कम टुगेदर। Okay, Dr. Bairamji and myself were the first person to approach the government. We were through the whole process. अभी काउंसिल बनेगी, रूल्स बनेंगे, लेकिन आई वॉन्ट एवरीबडी टू स्टडी। अवर विश इज दैट ओनली। कोई चिंता नहीं, सब वेबसाइट पे फ्री है। हाँ, ध्यान से सुनो, कंसेप्ट समझ के जाओ, आज से प्रैक्टिस चालू करो, वेबसाइट पे जाना। ऑलराइट, नाउ सो इंटीरियर एक्सटीरियर रिलेशनशिप, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड हार्ट मेरिडियन, यिन एंड यांग जो हम कहते हैं वो सेम एलिमेंट के, ठीक है। सो यू आर यूजिंग मे बी हार्ट 3, maybe you can use heart 3 but on the opposite side to use it for right sided tennis elbow. All right, next please. Now you are talking about opposite the organ clock. अभी SI क्या है, 1 2 3, सामने क्या है, लीवर. So you can use liver meridian to treat small intestine meridian. Please go ahead. And lastly, neighbor, that is coincidentally repeating, that is UB meridian again. In 3 combinations it gets repeated, in 3 combinations it doesn't get repeated. So jahan repeat hai, you don't have to repeat the needles. Now remember the rule, you are not using all the needles. Just imagine मैंने आपको 6 systems सिखाई. All right, now I am not saying use all of them at a time. If you have little more knowledge, you can connect. For example, I had many patients who would say pain in the knee, that is spleen meridian. Somebody coming along with that with UB meridian or back pain. So you see in the chart, you can go ahead and show the chart. This is the chart. Now see, यहाँ UB और spleen कहाँ common मिलता है? Don't go rigid. The presentation of the patient is spleen meridian and UB meridian which is on the surface. So ये चार्ट में आपको देखना है कि spleen meridian और UB meridian कहाँ commonly at a time use हो रहे हैं. Use that combination. आपको लगेगा कि affected meridian नहीं दिख रहा मुझे. Don't follow this. Follow what is in combination. See, this is the combination, spleen and UB and SI. मिल गया? So this formula will definitely work for all the problems of the same patient. How many needles? 5 to 6 minimum needles. Why the patient will not accept it? And the best part is the rhythm of the treatment. You can do 3 treatments in a week. More the betterment, less the treatment. Make it twice, make it once a week. As per the betterment is more, patient has to come for less visit. आज आपको कम पैसा दिखेगा, but don't worry. Patient getting better earlier will recommend 4 more. This is my experience. When my teachers were saying, I was kind of, am I doing the right thing? The purpose was in mind, we have to do the right thing. And I'm here in front of you today after so many years. This is the same dais जहाँ जयसूर्या ने मेरे को certificate दिया यहाँ से. All right, I'm here just for those old memories. I used to be a regular person coming here to teach. मैं बाहर स्टॉल लगाता था, पल्स देखता था, जो भी पैसा डालना है डब्बे में डालो, ओम को जाएगा. If you people want, I can be available. But now I'm doing the next because next generation is here to do this for you. I'm going to the next plane. All right? Any questions? Satisfied? जो भी है मुंह पे बोलो. क्या चार्ट? पीछे जाओ, आगे बढ़ो. लास्ट स्लाइड, लास्ट स्लाइड, लास्ट लास्ट लास्ट. ये देखो आगे पॉइंट कैसे सिलेक्ट करना वो भी है, सारा डिटेल है. ओके, मैंने आज आपको एक एग्जांपल ग्लिम्पसेस दिया. This is how you can choose the point.
दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम वाइज, सीजन वाइज। अगर कोई पेशेंट बोलता है कि मुझे ये टाइम में एग्रीवेशन होता है, सी यू कैन गो फ्रॉम द पोजीशन ऑल्सो। 5 शू का पोजीशन से भी आप पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसे टाइम से भी सिलेक्ट कर सकते हो, एलिमेंट से भी सिलेक्ट कर सकते हो, चॉइस इज योर्स। आपको आपका खुद का नॉलेज इस्तेमाल करके उसको मैनोवर करना है। आई डोंट बिलीव इन बीइंग रिजिड, सिर्फ यही करो नहीं, आप फ्लक्चुएट करो पेशेंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ऑलराइट, लास्ट स्लाइड प्लीज। नाउ दिस इज द वेबसाइट, यू विल गेट इट। You will get all the information, first-hand information about acupuncture, council, rules, etc. Because we are the first people to know. We want the correct information to go to you. Mislead nahi hona. I am requesting you. Please get the correct information. And if you still need, next slide please. This is me and this is my better half. पसंद आया तो इसको बोलो, आज का लेक्चर पसंद नहीं आया तो मेरे को कोने में लेके बोलो इट वाज रबिश। थैंक यू एवरीबॉडी। एनी क्वेश्चंस? बाजू हट जाऊं? ओके, थैंक यू। डोंट कॉल मी सर, सर के सर पे सर नहीं रहेगा तो हवा नहीं भरनी चाहिए। ऑल गुड? हाँ जी बोलिए। No, it's not your meridian. We are talking about patient's condition, wherever the painful meridian is. For example, if you are looking at tongue, painful रहेगा ना, patient spot बताएगा। See, 80% of the patient what we treat, they are coming with pain, swelling, etc. तो वो जो spot बताएगा आपको, तो आप चार्ट है, एक्यूपंक्चर का चार्ट लो, उसमें आपको सीधा ट्रेस करना है कौन सा मेरिडियन है। इट्स वेरी सिंपल, चार्ट कहीं भी अवेलेबल है, दैट्स नो प्रॉब्लम। ओके, और अगर आपको दूसरा डायग्नोसिस का तरीका आता है तो आप टंग देख लो, आपको चीज स्टैग्नेशन मिल रहा है। सब तो वन लेडी कम्स टू यू सेइंग दैट मेरे को डिस्मेनोरिया है या व्हाटएवर अमेनोरिया है, तो लीवर चीज स्टैग्नेशन मिला आपको, तो आप लीवर मेरिडियन को चूज करो, आपको रिलेटेड चीज मिलनी ही है। आपको वो डायग्नोसिस भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो। सपोज आपने पल्स देखी, उसमें आपको स्प्लीन एक्सेस मिल रहा है, तो आप स्प्लीन का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। आई थिंक आई हैव सिंप्लीफाइड इट वेरी वेल। जो एक्यूपंक्चर समझ सकता है वो समझेगा कि इट इज सो सिंपल, बट बिलीव मी, यू कैन ट्रस्ट इट, इट इज फैंटास्टिक, डेफिनेटली रिजल्ट ओरिएंटेड। नहीं तो मेरा फोन नंबर है, कंप्लेंट करो, आपकी डिफिकल्टी पूछो, आई एम ऑलवेज देयर। ऑलराइट, एनी मोर क्वेश्चंस? I teach Sujok, I teach Chinese, everything, but most of the time we want to do it under the banner of ASP. Privately also we do. I am at Ghatkopar and Mulund both. Contact us if required. All right? I am not here for that. मेरा ये 20 मिनट का टॉक भी आपको टेक होम मैसेज मिलना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस में इजाफा होना चाहिए। That is the purpose. Thank you very much.